آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ سرکار ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کی سمت میں کام کرتی رہے گی اور سرکار نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور بہتر ماحول بنایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بلڈ ڈونرز ڈے کے سلسلے میں ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں تقاریب منعقد۔ قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ کرنا سب کے لیے لازمی، مقررین۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں بالتل کا کیا دورہ۔ یاتریوں کو تمام ضروری سہولیات بہم رکھنے کی دی ہدایت۔ اور اولمپک عالمی کھیلوں میں حصہ لینے کی غرض سے 198 ایتھلیٹوں سمیت 280 ارکان پر مشتمل بھارتی ٹیم برلن کے لیے روانہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 9 برس کے دوران مستقبل کو نظر میں رکھ کر اصلاحات کی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان اصلاحات سے تجارت کی راہ نہ صرف آسان ہوئی ہے بلکہ نوجوانوں کے درمیان کاروبار کے جذبے کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ترقی اور اختراع کو فروغ دینے کی سمت میں کام کرتی رہے گی اور حکومت نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور بہتر ماحول بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد شعبوں میں 100% غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے لیے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری پالیسی کو آسان بنایا گیا ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر مزید مسابقتی بنانے کے لیے کارپوریٹ ٹیکس میں بھی کمی کی گئی اور اسے آسان بنایا گیا، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور ملک میں سرمایہ کاری کی آمد میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بالتل کا دورہ کرتے ہوئے شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے موقع پر ہدایت دی کہ یاتریوں کے لیے بہترین انتظامات دستیاب رکھے جائیں تاکہ انہیں یاترا کے دوران کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایل جی نے صحت شعبے، بجلی، مواصلات، پینے کے پانی، صفائی ستھرائی اور موسم سے متعلق جانکاری فراہم کرنے والے سینٹر کے علاوہ ناگہانی آفات سے نمٹنے والے ادارے اور حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے صحت شعبے سے وابستہ اہلکاروں سے تاکید کی کہ وہ 24 گھنٹے تیار رہیں تاکہ کسی بھی یاتری کو صحت کے حوالے سے پریشانی کے وقت اس کی بہتر دیکھ بھال کی جا سکے۔ ایل جی نے یاترا کے پورے سیکٹر کا غور سے جائزہ لیا اور حکام سے تلقین کی کہ وہ یاترا کے اختتام تک اپنی سروس تندہی اور لگن کے ساتھ انجام دیں۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ DRDO کی طرف سے تعمیر کیے جانے والا اسپتال 17 جون کو پوری طرح سے قابل کار بنایا جائے گا اور یاترا شروع ہونے سے پہلے اس میں تمام ضروری سہولیات میسر رکھی جائیں گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سونمرگ میں بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے تاکید کی کہ وہ سماج سے منشیات کی بدعت کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون پیش کریں تاکہ ہم جموں کشمیر کو منشیات سے پاک خطہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز نے ہمیشہ سماج کی بہتری کے لیے کام کیا ہے اور ان نوجوانوں میں سماج کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھرپور طاقت موجود ہے۔ ایل جی نے کووڈ-19 کے دوران بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی خدمات کو یاد کیا۔ واضح رہے، بھارت اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز کی طرف سے سونمرگ میں 10 سے 12 جون تک اسٹیٹ لیول کیمپوری 2023 منعقد کیا گیا تھا، جس میں جموں کشمیر کے تمام اضلاع سے آئے ہوئے 200 سے زیادہ اسکاؤٹس اینڈ گائیڈز نے شرکت کی تھی۔ پوری دنیا میں آج بلڈ ڈونرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 14 جون کو منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد رضاکارانہ طور خون کا عطیہ دینے والوں کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ دن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سال 2004 سے منانے کا فیصلہ کیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انسانیت کی بے لوث خدمت کے لیے رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خون کا عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہم رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دینے والوں کے شکر گزار اور احسان مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں خون کی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ وقف کرنا چاہیے اور محفوظ خون کی مصنوعات اور باقاعدہ عطیہ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس سال ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کا نعرہ ہے خون دیں، پلازما دیں، زندگی بانٹیں اور اکثر بانٹتے رہیں۔ انہوں نے لوگوں میں بڑے پیمانے پر بیداری پیدا کرنے اور خون کا عطیہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایل جی نے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ آگے آ کر جان بچانے کے لیے رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیتے رہیں کیونکہ اس کام سے نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ جانوں کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے۔
LG के मुशीर राजू राय भटनागर ने आज जीबी पंत अस्पताल में ब्लड डोनर्स डे के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। यह कैंप डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने बादामी बाग कंटोनमेंट के इश्तराक से मुनक्किद किया था। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपिंदर कुमार और महकमे सेहत के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। कैंप के दौरान अपनी तकरीर में मुशीर मौसूफ ने कहा कि खून का अतिया करना निहायत ही अजीम काम है और इस काम की तरफ ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को माइल करने का हदफ मुकर्रर किया जाना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतजामिया ने सेहत शोबे में तरक्की का एक जाल बिछाया है, जिसकी बुनियाद पर अब दूर दराज इलाकों में भी सेहत की आला खिदमात बहम पहुंचाई जा रही हैं। सेक्रेटरी हेल्थ ने भी खून के अतिये की अहमियत को उजागर किया और कहा कि लोगों को रजाकाराना तौर पर खून का अतिया करना अपना मामूल बनाना चाहिए ताकि कीमती जानों को वक्त पर बचाया जा सके। टटू ग्राउंड बटमालू में आज सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन की तरफ से रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अत्तर आमिर खान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि खून अतिया करना एक बेहतरीन जज्बा है और इस जज्बे की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को माइल करने की जरूरत है ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। सिक्किम में भी आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तहत एक खून अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। ब्लड डोनर्स डे के मौके पर ब्लड मैन ऑफ कश्मीर शबीर अहमद खान ने भी दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि मैंने अब तक 182 पॉइंट खून अतिया दिया है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो खून देने के अतिये को अपना मामूल बनाएं। ये 2004 से आज तक मनाए जाते हैं, इसलिए कि ब्लड डोनर का अवेयर करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है ब्लड डोनर का अवेयर कीजिए। और साफ ब्लड, जिसको कश्मीरी में उर्दू में लफ्ज़ है शुद्ध ब्लड, जिसको हम शुद्ध कहते हैं। तो इस सिलसिले में एक वॉलंटियरों को साल भर ब्लड देते ही हैं, तो ये इनके दिन इंटरनेशनल लेवल पर मनाए जाते हैं। मैंने आज तक खुद दिए 72 टाइम्स। हर इंसान को ब्लड लेना चाहे तो वो हार्ट अटैक से बच जाए। गांधरबल में भी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर आयुष और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सीआरपीएफ के 185वीं बटालियन की तरफ से आज पुलवामा में ब्लड डोनर्स डे के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई एहलकारों ने खून का अतिया दिया। कैंप में मौजूद सीआरपीएफ अफसरान ने आज के दिन के हवाले से खून का अतिया देने की अहमियत उजागर की। बीजेपी की तरफ से आज बारामूला में एक अवामी रैली मुनक्किद की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और वज़ीर ममलिकत डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना और भाजपा ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने तकरीर की और मोदी सरकार के 9 साल की कारकर्दगी का इहाता किया। अपनी तकरीर में दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे और इस दौरान मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों के फायदे के लिए कई काम अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने रिश्वत सताने की बिद्दत का न सिर्फ खात्मा किया बल्कि गरीब लोगों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाखों रुपए तकसीम किए। गुलाम अली खटाना ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक जिले का दौरा करने के दौरान यह तासुर वाज़ेह सूरत में नजर आ रहा है कि यहां के अवाम मौजूदा मरकजी सरकार की पॉलिसियों से इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। अशोक कोल ने भी मोदी सरकार के 9 साल को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतजामिया साफ शफाफ तरीके से अपना काम कर रही है और जवाबदेही का भी फुकदान खत्म हो गया। इन लीडरों के अलावा अवामी जलसे में साबिक वजीर सुनील शर्मा और साबिक एमएलसी सुरेंद्र अंबारदार ने भी मरकजी सरकार की हसूलियाबियों का तज़किरा किया। दाखिला इम्तिहानात के इनेकाद से मुतल्लिक कौमी एजेंसी ने नीट यूजी के मेडिकल दाखिला इम्तिहान के नतीजों का ऐलान किया। तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती ने 99.99 परसेंटाइल के साथ इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल किया है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान के तलबा का नंबर है। दाखिला इम्तिहान के इनेकाद से मुतल्लिक कौमी एजेंसी ने पिछले महीने की 7 तारीख को नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान कराया था। पूरे मुल्क में 499 शहरों में वाक़ 4097 मराकिज पर 2,87,462 उम्मीदवारों ने यह इम्तिहान दिया था। भारत के बाहर 14 शहरों में भी ये इम्तिहान कराया गया था।
कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे होम साइंसेज एंड बायो रिसोर्सेज ने आज सोटो सिकिम्स और जीएमसी श्रीनगर और जम्मू के इश्तराक से इंसानी एज़ा अतिया करने और टिश्यू प्लांटेशन पर एक जानकारी वर्कशॉप मुनक्किद किया। वर्कशॉप का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने किया। इस मौके पर डॉक्टर मंजूर अहमद मीर की तसनीफ शुदा ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक किताब को भी इजरा किया गया। महकमे ज़राअत ने पनीरी का दिन थजकाद आज वादी भर में मनाया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने गांदरबल से इस मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि कश्मीर के किसान धान की पनीरी का दिन काफी अहम सकाफती दिनों ही की तरह मनाते हैं। मजीद डायरेक्टर मौसूफ ने काश्तकारों के धान और दीगर फसलों के अकसाम को बचाने की काविशों की तारीफ की। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर ने जनूबी कश्मीर के 3 अजला पुलवामा, शोपियान और अनंतनाग में बैंक एटीएम गार्ड संजय कुमार कत्ल केस में आज भी तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस सिलसिले में पिछले महीने के दौरान 9 मकामात पर तलाशी ली गई थी। कुपवारा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरियों से मुतल्लिक एक लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें सीएमओ कुपवारा ने बतौर सरपरस्त और दीगर माहिर डॉक्टरों ने भी शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अख्तर अहमद गनाई की तरफ से अंजाम दी गई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को पेश किया गया और डॉक्टर गुलजार अहमद भट्ट समेत दीगर डॉक्टरों ने अपने तासुरात पेश किए और कहा कि दूर दराज इलाकों के मरीजों को अब जदीद तिबी सहूलियात उनके नजदीकी हेल्थ सेंटरों में ही दस्तयाब कराई जा रही है, जिसकी वजह से मरीज बड़े शहरों का रुख करने से बच रहे हैं। वाज़ेह रहे, शुमाली कश्मीर में यह अपनी नवियत का पहला लेप्रोस्कोपिक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जहां डॉक्टरों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मौजूदा इंतजामिया तिबी शोबे की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से इसलिए भाग रही है क्योंकि इसको बखूबी मालूम है कि अगर इस वक्त यहां इलेक्शन कराए जाएंगे तो भाजपा वालों को सबसे कम वोट हासिल होंगे और उन्हें हार का खतरा पहले से ही लायक हो चुका है। उन्होंने इन बातों का इजहार मागाम बिरवा में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात, पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की जा सकती है तो फिर असेंबली इलेक्शन कराने में क्यों लायतुल्लाल से काम लिया जा रहा है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोडा में आए जलजले से हुए नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो डोडा में जलजले से हुए नुकसान का तखमीना लगाएं और जिन लोगों को इस जलजले से नुकसान पहुंचा है उनके हक में फौरी तौर पर इमदाद वागुजार की जाए। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने डोडा और किश्तवाड़ में आए जलजले से हुए नुकसान पर इजहार गम करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में अपनी पार्टी गमजदगान के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हम सबको जलजले से असरअंदाज तमाम अफराद की मदद के लिए आगे आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने उर्स मुबारक हजरत सईद मोहम्मद अमीन मंतकी के मौके पर इंतजामिया से अपील की कि वो उर्स के दौरान बिजली, पानी और सेहत सफाई के इंतजामात बहाल रखें। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि वो खान साहब में सईद सोले रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के मौके पर जरूरी इंतजामात बहाल रखने के इक़दाम करें ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने फिल्म साउथ एशिया और हरी इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन रिसर्च एंड एक्सचेंज के इश्तराक से 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशो ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की, जबकि लक्ष्मी मूर्ति डायरेक्टर हरी इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन रिसर्च एंड एक्सचेंज ने मेहमान जी वक़ार के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के मैगजीन द इको की रस्मी रोनुमाई की गई। श्रीनगर में आज 2 रोज़ा एग्री विकास चैम्बर इंडस्ट्रीज की तरफ से मुनक्किदा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम को स्कूल एजुकेशन महकमे का इश्तराक भी हासिल था। प्रोग्राम का मकसद बच्चों को एक प्लेटफार्म मुहैया करना था ताकि वो इस काबिल बने कि रोजगार के हसूल के लिए मुस्बत रास्तों का इंतखाब अज खुद कर सकें। अदबी मरकज कामराज की तरफ से आज मरहूम कायद डॉक्टर सईद शुजात बुखारी को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया और मरकज के अरकान ने उनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हक में मगफिरत की दुआ की गई और फातिहा खानी भी की गई।
जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में 2 रोज़ा उर्दू शायरी सिंपोजियम मुनक्कद किया गया। इब्तिदाई निशस्त की सदारत नामवर ब्रॉडकास्टर और शायर रफीक राज ने की, जबकि अव्वल सदारत में मारूफ शायर और मुहक्किक डॉक्टर अयाज रसूल नाज बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। हुमामा बड़गाम में वाक़ एक निजी कॉलेज में आज मौलाना मरहूम मोहम्मद सईद मसूदी की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका एहतिमाम सरकर्दा दानिश्वर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने किया। इस मौके पर मौलाना शबीर अहमद मसूदी ने मरहूम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मालूमात पेश करते हुए इल्मी बसीरत पर रोशनी डाली। बाद में मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी की लिखी हुई एक किताब भी इजरा की गई। जर्मनी में होने वाली खुसूसी ओलंपिक आलमी खेलों में हिस्सा लेने की गरज से 198 एथलीटों समेत 280 अरकान पर मुश्तमिल भारत की टीम आज बर्लिन के लिए रवाना हो गई। इससे कबल इन अरकान ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में तैयारी के एक कोचिंग कैंप में हिस्सा लिया। जर्मनी में होने वाली इस खेल तकरीब में 190 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 7,000 से ज्यादा एथलीट शिरकत कर रहे हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पे हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।